बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग। यूनिट 2, कॉस्टिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, this unit describes the nature and composition of byproducts and joint products which are produced in a joint manufacturing process of an industrial concern. The byproducts and joint products both emerged from a joint manufacturing process which need apportionment of costs so that appropriate profitability is determined from the respective products. Dear students, today we will discuss costing of byproducts of this unit. The term byproduct is generally used to denote a product which is relatively of a small value and produced simultaneously with main products through a joint process. Byproduct intentionally produce नहीं की जाती, rather such byproducts become into existence automatically during manufacturing of main products. For example, sawdust in lumber mills, cotton seeds from cotton cores, and seeds from apples and shells from cocoa beans. These are some examples of byproduct. Dear students, here is a difference between scrap and byproduct. So let we see what is scrap. Scrap is small piece of material or residual that remain after the manufacturing process, often arising as wastes. स्क्रैप की जो वैल्यू है वो आम तौर पर नेग्लिजेबल वैल्यू होती है या बहुत कम वैल्यू होती है, और समटाइम्स इसकी वैल्यू इसको डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट से भी कम होती है, इसीलिए इसे हम स्क्रैप कहते हैं. Scrap is not a product but residual wastes. It can sometimes be sold as raw material for other industries. For example, metal cuttings left after machining, sawdust from furniture manufacturing. So here is a little difference between scrap and byproduct. A byproduct is a secondary saleable output of some value, whereas scrap is simply leftover material with minimum or negligible value. So dear students, waste is disposed of at minimum cost. Waste disposal cost is charged to manufacturing overhead and applied to other products as part of the manufacturing overhead allocation process. Here, this program is about the accounting treatment of byproduct. So while talking about the accounting for byproducts, we have two commonly used methods to account for the byproducts. First one is realized value approach. इस अप्रोच के तहत हम बाय प्रोडक्ट को एज अ अदर रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, जबकि जो दूसरी अप्रोच है, इस अप्रोच के तहत बाय प्रोडक्ट से हासिल होने वाली रेवेन्यू को हम जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से डिडक्ट करते हैं. सो लेट वी सी कि इन दोनों मेथड्स के तहत कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस है जिस
प्रोसेस के थ्रू हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं। दो मेन प्रोडक्ट्स हैं और एक बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस में वी इंकर्ड जॉइंट मटेरियल कॉस्टिंग $50,000 और जॉइंट कन्वर्जन कॉस्ट वी इंकर्ड 50,000। इस तरह $1,00,000 की कॉस्ट हम कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस पर अक्कर करते हैं। जब एक पॉइंट आता है जिसे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट्स सेपरेबल हो जाती हैं और उसके नतीजे में वी गॉट 2 मेन प्रोडक्ट्स एंड 1 बाय प्रोडक्ट। अब इन 2 मेन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है उनमें एक की वैल्यू $1,00,000 है, दूसरे की वैल्यू $70,000 है, जबकि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू $1,500 है आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट अमाउंटिंग $400। यानी हम इस बाय प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फर्दर कॉस्ट अक्कर करेंगे, देन वी विल बी एबल टू सेल दैट बाय प्रोडक्ट। Dear students, as you are viewing on the screen, here we plotted 2 methods. First one, NRV method, जिसमें हम बाय प्रोडक्ट से हासिल होने वाली रेवेन्यू को एज अ अदर रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, जबकि दूसरे मेथड में हम बाय प्रोडक्ट से होने वाली रेवेन्यू को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। मेजर प्रोडक्ट रेवेन्यू दोनों मेथड्स में ऑब्वियसली हमें 1,70,000 रिसीव हुई है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की रेवेन्यू 1 लाख और दूसरी प्रोडक्ट की रेवेन्यू 70,000 थी। नाउ लुक हियर, 1,100 is received from the sale of byproduct after deducting necessary expenditures। इसे सेल करने के लिए जो कॉस्ट हमें इंकर करना पड़ी वो डिडक्ट करने के बाद हम इसे एज अ अदर रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। एज अ अदर रेवेन्यू के लिए जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द मेजर प्रोडक्ट रेवेन्यू हम ऐड करेंगे एंड इन दिस वे we will report total revenue $1,71,100। Joint production cost both cases में same है 1 lakh, and in the second method we will deduct 1,100 from the joint production cost, and in this way we will get adjusted cost of sales $98,900, whereas in the first method we will get 1 lakh. So in both cases we will get gross margin 71,100 and 71,100. So dear students, we have just different methods of trading by product। कि फर्स्ट मेथड में हमने इसे एज अ अदर रेवेन्यू ट्रीट किया और दूसरे मेथड में हमने इसे टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से डिडक्ट किया और एंड रिजल्ट हमारा सेम रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अभी जो हमने एग्जांपल्स समझी उसमें वी अज्यूम्ड कि बाय प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड, जबकि ये बाय प्रोडक्ट अनसोल्ड भी हो सकती है। तो इन बोथ केसेस में हम कोई भी केस, कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हों तो इनमें इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। इफ़ वी आर यूजिंग मेथड 2, द $1,100 बाय प्रोडक्ट NRV is deducted from finished goods inventory or work in process inventory if unfinished। अगर ये unfinished है,
कंप्लीशन स्टेज पर नहीं पहुंची तो वर्किंग प्रोसेस से डिडक्ट करेंगे, और अगर कंप्लीट हो चुकी है तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से हम डिडक्ट करेंगे बाय प्रोडक्ट की NRV को। बट इफ़ वी आर यूजिंग मेथड 1 कि जहां हम NRV को एज अ अदर रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, तो इस केस में $1100 बाय प्रोडक्ट NRV इज प्लेस्ड in a byproduct inventory account. So there are some accounting treatments. आज हमने बाय प्रोडक्ट के बारे में और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को बखूबी समझ पाए होंगे। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।